So all the time seek Jesus. इसलिए आप यीशु मसीह के पीछे हो ले। Whatever you want, it will come automatically to you. आपको जो चीज चाहिए वो अपने पास आ ही जाएगा। We should not put our trust upon how I can take a loan and build my house. आप ऐसा मत सोचिए मैं लोन कैसे ले अपना मैं घर कैसा बनाऊं करके। Look upon यीशु Jesus. की तरफ देखिए। Don't look upon our bank and the worldly resources. आप इस बैंक की तरफ या इस संसार की चीजों की ओर मत देखिए। Look upon Jesus. यीशु की तरफ देखिए। He is the provider. वो यीशु मसीह आपको देने वाला है। He is our creator. वो हमें सृजनहार है। Today the Lord is speaking to you. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। Take a strong decision. आज एक आप बहुत अच्छा निर्णय ले Increase लीजिए। your prayer time with Jesus. आप अपना प्रार्थना करने का समय बढ़ाइए। Don't allow the unwanted worries and sorrows in your life. आप कोई भी चिंता परेशानी को अपने जीवन में मत लाइए। The Lord is going to bless you and the Lord is going to do great things in your life. परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है और आपका जीवन में बहुत बड़े कार्य करने जा रहे So हैं। today is going to be the day of your miracle. आज आपके लिए एक चमत्कार का दिन है। Concentrate on Jesus. वो यीशु के ऊपर ध्यान लगाइए। All the worldly things are already there for you. इस संसार के सारे चीज जो है आपके लिए रखा हुआ है। It's a free. ये सब कुछ मुफ्त में है। You should only focus on Jesus Christ. आप सिर्फ यीशु मसीह के ओर आपकी ध्यान लगाना है। Whatever you want, it will be given to you automatically. वो सारे चीज अपने आप आपके लिए रखा हुआ है। So I want to share with you one example. आपके साथ एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। So in one of the kind of big ship, the kind of big ship, the lots of people went for the vacation. एक बहुत बड़ा नाव था, उसमें बहुत लोग घूमने के लिए निकले हुए थे। So that is a very luxurious ship. वो बहुत अमीर लोगों का वो जो नाव है। So many ship। people they want to see the island around that one particular country. वहाँ पे एक आइलैंड था, उस जगह पे उस देश पे वो देखना चाहते थे वहाँ के लोग। So everybody in that ship, they are enjoying everything because all the things are there. Not everything the people are enjoying. वहाँ पे उस नाव में जो लोग बैठे हैं वहाँ की पूरा चीज उन लोग मतलब उसका आनंद ले रहे थे। वहाँ पे अगल बगल में जो भी चीज है उसे देखकर। Only one person, he was sitting in one corner of the ship and he is not at all enjoying anything. उसी नाव में कोने पे एक व्यक्ति बैठा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था, बस वैसे ही बैठा ही रहा था। So the captain of the ship came to him. उसका जो नाव का कैप्टन है वो आके पूछता है उनसे। He called his name through the ticket. वो टिकट पे देखकर उसका नाम लेकर बुलाता है। Timothy, why you are in sorrow? तिमोथी, तुम चिंता में क्यों हो? Why you are? Everybody is enjoying the luxurious that kind of harmony of the blessings of the ship, but why you are sitting with sorrow? सब लोग अपना नाव में सारे जितना भी सुविधा है उसकी आनंद ले रहे हैं, बस तुम अकेले क्यों ये चिंता में बैठे हुए हैं? So he replied, तब उन्होंने जवाब दिया, Sir, I forgot to take any more money for the expenses in the ship. मैं अपने साथ जितने भी ये जिस नाव में जो खर्चा है उसके लिए पैसे लेना भूल गया था मैंने। So that's why I am in sorrow without the money. इसलिए मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए मैं चिंता होकर बैठा हूँ। I am not able to enjoy the great joyous things in the ship. इस नाव का सबसे ज्यादा आनंद मैं ले नहीं पा रहा हूँ। The captain took the ticket from his hand. वो कैप्टन अपना टिकट उसका टिकट लिया था अपना हाथों में। So he showed him in the back side of the ticket. वो उसका पीछे टिकट पे ऊपर उन्हें दिखाया था। It is very big bold letter. It is written like this. वहाँ पे बहुत बड़ा अक्षरों में वहाँ पे लिखा हुआ था, Those who are traveling in the ship, all the things are 100% free for the travelers. उस पे लिखा है उसमें सफर करे हर एक यात्री के लिए 100% सारे चीज मुफ्त में मिल रही है। Everything is free. हर एक चीज मुफ्त में मिल रही But थी। he is not seen that important word written. वो पीछे जो चीज लिखा हुआ था वो उन्होंने नहीं देखा था। So then he started enjoying everything. तब से उन्होंने उसका आनंद लेने लगा। The same way, my friend. उसी तरह मेरा दोस्तों, We are traveling in this world. हम भी इस संसार में यात्रा कर रहे We हैं। are making a life journey in this world. हम इस संसार में अपना सफर कर रहे हैं। So our focus is the heaven.
हमारा ध्यान स्वर्ग है। So the heaven is our destiny. हमारा जो अंत है वो स्वर्ग है। But there is a word is written, the word of God is written in the promise book. जो वचन में लिखा है वो सब परमेश्वर का वायदे हैं। Don't worry for anything. आप किसी विषय की चिंता ना करें। Don't have any sorrows. आप अपना दिल में कुछ परेशानी Every ना day रखें। just to pray to me and love me more and more. हर दिन आप मुझे प्रार्थना कर और मुझे और ज्यादा प्यार करते रहा। All the worldly things will be come to you freely. इस संसार के सारे चीजें आपको मुफ्त में मिल जाएगा। Everything will come and join with you. सारे चीज आपके पीछे आते रहेंगे। So increase the prayer time with Jesus. आप प्रार्थना का समय यीशु के साथ और ज्यादा करिए। So if you are unable to pray in your home, you can come here and join the prayer here. अगर आप अपना घर में प्रार्थना नहीं कर सकते, आप यहाँ पर आकर भी प्रार्थना कर सकते So हैं। we have lots of prayer rooms here. यहाँ पे प्रार्थना का कमरे हैं बहुत So you सारे। can sit in the chapel and pray to God very personally and enjoy the presence of God. आप यहाँ पे चापल में आके व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। So increase the prayer time with Jesus. आप प्रार्थना समय बढ़ाइए यीशु के साथ। Jesus knows everything about you. यीशु सब कुछ जानते हैं आपके बारे So में। today Jesus is going to do mighty things in your life. आज परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं आपके जीवन में। What is the main thing is bothering and tormenting your mind and heart? आपको जो चीज बहुत ज्यादा सता रही है और आपका दिमाग में ज्यादा परेशानी लेकर आ रही है, So try to change that with the word of Jesus Christ. वो वचन यीशु का वचन के द्वारा उसको बदलने की कोशिश करिए। The sickness is tormenting you. अगर बीमारी आपको ज्यादा सता रही है, Oh, if this sickness come, what shall I do? ये बीमारी आया मैं क्या करूं? So how shall I live long in this world? और इस संसार में और ज्यादा दिन कैसे जीऊं? So like that, whatever may be the problems, ऐसा कोई भी समस्या भी हो, transfer your problems with the God's promises. वो वचन के साथ, वचनों के साथ, उसको वायदे के साथ परिवर्तन करे उसे। The problem, the worries will come to you because we are in the flesh. इस संसार में समस्या आ सकती है क्योंकि हम अपने शरीर में जीते हैं। So, but we should live in the through the Holy Spirit and with the promises of God. हम पवित्र आत्मा में भी जीना है यीशु मसीह का वायदों के साथ। Whenever the worries and sorrow will come and hit your mind and thought, जब भी समस्या आके आपका दिमाग में विचारों को लेकर आता है, immediately you should go to Jesus Christ with through the promises of God. आप तुरंत यीशु के पास जाना है अपना वायदा लेकर। So that is the Christian life. यही मसीह का जीवन है। This is our day-to-day life experience. ये हमारे हर दिन के अनुभव होना चाहिए। Keep more word of God in your heart. आप अपना जीवन में बहुत सारे वायदा रखिए। Keep more word of God in your heart. आप अपना हृदय में प्रभु का वचन रखिए। Whenever the situation will come, the word of God will start to work in your life. कोई भी परेशानी आएगा, वो वचन आपका जीवन में काम करने लगेगा According to the need. आपका जरूरत के अनुसार। If you are going through any financial, any kind of the loan issue or money problem, अगर आपका जीवन में कोई आर्थिक समस्या हो, लोन हो, कोई भी पैसों का समस्या हो, immediately the correct word of God from Philippians 4:19, it will come like this. आपका प्रभु का वचन में फिलिपियो 4 और 19 में ऐसा कहता है, My God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह अपने महिमामय अनुग्रह से सारे जरूरतों को पूरा करेगा। You are going through any kind of sicknesses and any kind of disease, अगर आप अपना जीवन में कोई बीमारी से गुजर रहे होंगे, immediately the 1 Peter 2:24 will come. By the stripes of Jesus Christ, you already healed. यीशु मसीह का वचन ऐसा कहता है, प्रभु का वचन पहला पत्रस 2 और 24 में, प्रभु यीशु मसीह का कोड़ा के आने से हमें चंगाई मिल चुके हैं। Several times we will have the unwanted questions, what will happen, how it will be happen, how you can achieve, how you will have the blessed future, what is the future of your children. So such a time the Philippians 4:13 will come to you. जब आपके जीवन में परेशानी आते हैं या आपके दिमाग में ऐसा विचार घूमते रहेंगे, मेरा भविष्य क्या होगा आने वाला समय में, या मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, उस टाइम प्रभु का वचन फिलिपियो और 4 में बताते हैं। 4:13 the Bible says, फिलिपियो 4:13 बताते हैं, I can do all things through Jesus who strengthens me. जो प्रभु मेरे लिए जो हमेशा
निर्बलों को बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Ephesians 3:20, the Bible says, इफिसियों 3:20 में कहता है, the Lord will bless me exceedingly abundantly beyond my imagination. परमेश्वर मेरा सोच से भी, मेरा मांगने से भी बढ़कर ज्यादा आशीष देने वाला है। Such a way the promises of God will work in our lives. ऐसा ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता रहेगा। Jesus Christ, our loving Father, knows everything in our life. यीशु मसीह हमारे जीवन का हर एक चीज जानता है। Try to love Jesus more. यीशु को ज्यादा प्रेम रखना आप सीख लीजिए। All the time keep the word of Jesus Christ in your mind and thought. आप अपना सोच में और अपना दिमाग में हमेशा प्रभु का वचन रख लीजिए। So two type of words are there. दो तरीके का वचन है। One is the the supreme, the greatest is the word of Jesus Christ. एक वचन जो है सबसे महान है वो यीशु मसीह का वचन है। So number two is the worldly people words and your word and the people words. These are worldly words. जो दूसरा वचन जो है इस संसार का वचन है जो आपका है और इस संसार का लोग बोलते हैं। So if you have any weakness in your body, अगर आपका शरीर में कोई भी निर्बलता हो, the word of Jesus will say, my son, my daughter, you are healed by the precious and the powerful stripes and wounds and the blood of Jesus Christ. अगर आपका शरीर में कोई भी कमजोरी हो, कोई भी बीमारी हो, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र वो कोड़े खाने से आप चिंगे हो चुके हैं। So that is the real and the truthful word of Jesus Christ. वही सच्चाई और सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है। If you go to the other people for your sickness, the other people, the medical science, the history, that thing will say, that will give you the negative report. अगर आप किसी और के पास जाएंगे या हॉस्पिटल या मेडिकल लोगों के पास, साइंस भी बताते हैं कि उन लोग कुछ नकारात्मक आपके लिए बता सकते हैं। So you have to all the time very careful for the two type of words. इसलिए आप अपना दो वचन के अनुसार आप जागरूक रहना जरूरी One है। is the word of Jesus. एक तो यीशु मसीह का वचन The है। word of Jesus will say, my son, my daughter, because I live, you shall believe. यीशु मसीह का वचन जो है, मेरा बेटे मेरा बेटी तुम्हें रक्षा करेगा क्योंकि मैं जीवित हूँ, क्यों इसलिए तुम भी जीवित रहेगा। The worldly word says, लेकिन इस संसार का वचन कहता है you will die. तुम मरोगे। Jesus says you will live. यीशु मसीह बोलता है तुम जीवित रहोगे। The worldly things will say you will die. लेकिन इस संसार का चीजें बोलते हैं तुम मरोगे। So choose the word. Using the word is the very key factor of our day-to-day life. इसलिए वचन को चुनना और हमारे जीवन में उसको अनुभव करना ये बहुत मूल्य रखता है। Word of Jesus Christ is full of grace and full of joy. यीशु मसीह का जो वचन है सिर्फ अनुग्रह और आनंद है। He all the time speaks only the word of grace for you. इसलिए वो हमेशा आपके लिए अनुग्रह की बातें करते हैं। The midst of your problem also he will say, my son, my daughter, fear not, I am with you. इसलिए आपका समस्याओं के बीच में भी परमेश्वर का वचन कहते हैं मेरे बेटे बेटी तू चिंता मत कर, डरो मत अपना समस्या में भी। That is the graceful word of Jesus. ये अनुग्रह का वचन है यीशु मसीह का। Mark 4:22 the Bible says, मार्कुस 4:22 में परमेश्वर का वचन कहता है Jesus, all the time the graceful words came out of the mouth of Jesus Christ. यीशु मसीह का मुंह से हमेशा अनुग्रह का ही वचन बाहर आया है। All the time Jesus speak the graceful word, the word full of grace and mercy. यीशु मसीह का मुंह से हमेशा और हर समय अनुग्रह और तरस का ही वचन निकले थे। If you read John chapter 11, the Lazarus already he died for the 4 days. आप यूहन्ना का 11 अध्याय में देख सकते हैं लाजर मर के 4 दिन हो चुके थे। The two type of words are there. दो तरीके का वचन वहां पे देख सकते हैं आप। The worldly word says, वो इस संसार का वचन कहते हैं Jesus, 4 days over, there will be a bad smell in the dead body. और 4 दिन हो चुके उसमें से बदबू मारेगा उस लाश The से। word of Jesus Christ says, if you believe, you see the glory of the Lord. लेकिन यीशु का वचन कहता है अगर तुम मानोगे विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा देखोगे। What type of word is going to be prevail and overcome in your life? अगर किस तरीके का वचन आपका जीवन में पूरी होना है। If you are fully depending on the medical history and the medical report, you will never
enjoy the word of Jesus Christ in your life. अगर आप सिर्फ इस मेडिकल रिपोर्ट पे और दवाइयों पे ऊपर अपना उम्मीद रख रहे तो इस यीशु मसीह का आनंद आप नहीं अनुभव कर सकते 2 हैं। days back, I was in one hospital in Delhi to pray for someone. 2 दिन पहले मैं किसी के साथ था अस्पताल में, किसी को प्रार्थना करने के लिए रहा था वहां पे। Everywhere there is a people full of sorrows and sickness. हम हर जगह वहां पे सब लोग चिंता में थे, बीमारियों से गुजर रहे थे। Everywhere there is a sound of death and cry everywhere outside of the ICUs. वहां पे सिर्फ और सिर्फ आईसीयू के बाहर मौत का ही आवाज निकल रहे थे। Someone died and the relatives are crying and fainting, and everywhere there is a cry of death. वहां पे सब लोग रो रहे थे, उनका रिश्तेदार रो रहे थे, उसके आईसीयू के बाहर भी लोग रो रहे थे। There is a good voice, the graceful word is missing in their life. लेकिन वहाँ एक चीज छूट गए थे, वो अनुग्रह का यीशु का वचन था। If you know Jesus, अगर आप यीशु को जानते हैं, if you like to love him more, अगर आप यीशु से ज्यादा प्रेम रखते हैं, love him more. और ज्यादा प्यार करें, Ask the holiness of God. परमेश्वर का पवित्रता मांगे। Don't go back any of the worldly sinful nature anymore. इस संसार का कुछ भी पापों की चीज के पीछे फिर से ना जाएं। That will ready to catch you like a lion. वो आपको पकड़ने के लिए वो एक सिंह की तरह है। All the time try to follow Jesus with the holiness of Jesus Christ. आप सिर्फ पवित्रताएं के साथ यीशु के पीछे हो ले। All the time only obey the word of Jesus Christ in your life. आप हमेशा प्रभु का वचन को ये अपना जीवन में मानते रहिए। So all the time Jesus will give you the graceful word to you. हमेशा यीशु मसीह आपके लिए अनुग्रह का ही वचन देते The रहेंगे। own family members of the Lazarus told Lazarus died for 4 days. लाजर का सब लोग, अपना परिवार का सारे लोग बोल रहे थे वो मर के 4 दिन हो रहे हैं। But the word of Jesus is, if you believe in the midst of your problem, surely you will see the glory of the Lord. लेकिन यीशु का वचन आया और बोल रहे अगर तुम विश्वास करोगे तो मेरी महिमा देखोगे। Whatever may be your situation today, कोई भी हालत में आप हो आज, are you looking for the salvation of someone? अगर आप किसी और के उद्धार के लिए है, Someone's salvation and transformation in life? और किसी और का आप उद्धार या परिवर्तन के लिए देख रहे होंगे, Many years you are praying for them. बहुत सालों से आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, Don't give up your prayer. लेकिन आप प्रार्थना से पीछे ना हटे। The same God who transforms Saul to Paul, he want to work in your family and in your dear one's life. वो जो परमेश्वर साउल को पौलुस की तरह बदला है, वो आपका जीवन में भी कार्य करेगा। All the time trust in the graceful word of Jesus Christ in your life. आप हमेशा यीशु मसीह का अनुग्रह वचन के ऊपर विश्वास रखिए। So the Mark chapter 5, the Bible says. मार्कुस 5 में परमेश्वर का वचन कहता है। So here continuously 3 miracles are happening. 3 चमत्कार वहां पे लगातार हुए हैं। Number 1, the Lord is casting out the demons, the evil spirit from the person. वहां पे यीशु मसीह पहले एक दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। So on the way, the church leader, the head of the synagogue, Jairus, came and begging Jesus Christ to heal his daughter. वो वहां पे हाइगर का बेटी होती है, उनको चमत्कार करने के लिए वो बुलाता है यीशु मसीह को। So in the middle of that situation, the 12 years, the bleeding, the lady, she came and intervened to stop the miracle of the little daughter of Jairus. उनके बीच में 12 साल से वो लहू बहने वाली स्त्री की वो आके वो चमत्कार को रोकने की कोशिश की थी। Jesus healed that lady she touched the garment of Jesus and received the miracle immediately. वो परमेश्वर यीशु का कपड़े छूकर तुरंत उन्होंने चंगाई पाई है। Jesus Christ just talking to that lady. यीशु मसीह सिर्फ उससे बात कर रहे थे, उस महिला The से। another side, one group of people gather and they talk to with that Jairus. Jairus, don't disturb Jesus Christ. Your daughter already died. और जेरस का उनका जो एक झुंड आया था, उन्होंने वो दूसरा जगह बता रहे थे तुम यीशु मसीह को मत सताना, वो अब तुम्हारा बेटी मर चुकी है। Bible clearly says Jesus Christ never care about the words of the people. वहां पे यीशु मसीह का वचन बताते हैं कि यीशु मसीह उनका बातों के लिए ध्यान नहीं दिया, Because that people words are only the words of death. क्योंकि वो इंसान का जो बातें हैं वो सिर्फ मौत है। But the words of Jesus is full of life. लेकिन यीशु मसीह का बातें हैं वो जीवन है। Jesus say one word to the Jairus. Jairus, fear not.
Don't be afraid, just believe. वो जैरस को बोला था यीशु मसीह ने, तुम डरो मत, बस विश्वास करो। So Jesus entered into the house of Jairus. वो जैरस का उसका घर पे गया था। There one group of people came. The child already died. वहां पे एक झुंड आए थे, एक और बोल रहे थे कि वो बेटी मर चुकी That है। is the words of people. वो लोगों का बातें हैं, But what is the real word of Jesus? लेकिन यीशु मसीह का वचन क्या है? The child is just sleeping. वो बस सो रही थी वो So बेटी। there is a great difference. वहां पे बहुत अंतर है। So you receive the graceful word of Jesus Christ today in your life. आप आज अनुग्रह का यीशु का वचन पाएंगे। So he knows everything. वो सब कुछ जानता है। He knows everything in your life. वो आपके जीवन का सब कुछ बातें जानते हैं। So the Luke chapter 7, one widow lady, he had only one son. वो लूका और साथ में एक विधवा महिला थी, उनको बस एक लौता बेटा था। So the place called Nain, Jesus entered into that place. They carrying the dead body. वो नाइन की जगह पे जब यीशु मसीह जाते हैं, वो अपना वो पूरा अपना लाश लेकर उन लोग चलते रहते थे। Jesus, no one told any history to Jesus. यीशु मसीह की कोई भी उस दृश्यांत के बारे में घटना के बारे में नहीं बताए थे। Everything is known by Jesus Christ. यीशु मसीह को खुद पता था वहां पे क्या हो Jesus रहा है। knows she is a widow, only one son. How she will survive in this world? यीशु मसीह को सब कुछ पता था, वो विधवा महिला है, वो इस संसार में वो कैसे चलेगी, उसका एक ही बेटा है। Jesus say one word, everybody be stop. You stop. The people stopped that things. He say, young man, rise up. यीशु मसीह बस इतना बोला था, रुक और उसको बोला था और खड़े हो जाओ। So this is the heart of Jesus Christ. ये यीशु मसीह का हृदय है। Several times we are having a thought, who will know my heart? Who will understand me in this world? Who will share the problems I am going through in my life? आप कई बार सोचते होंगे, आपका मन में ऐसे विचार आते होंगे, कौन मुझे समझेगा, मुझे कौन अच्छे से समझेगा करके। Jesus knows. यीशु मसीह जानता है। Today trust the graceful word of Jesus Christ in your life. आप आज प्रभु का जीवित वचन के ऊपर अपना विश्वास रखिए। Try to increase the Bible reading more and more all the time. Read the Bible. आप हमेशा रोज परमेश्वर का वचन पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहिए। All the time you will have only the word of Jesus. You will enjoy the sweet presence of the Holy Spirit in your life. आप हमेशा परमेश्वर का वचन को अपने अंदर और परमेश्वर का अनोखा उपस्थिति को अपना जीवन में महसूस करेंगे। All the time remember and live only the word of graceful word of Jesus Christ. हमेशा यीशु मसीह का वचन में ही जीते रहेंगे। All the time obey the Holy Spirit and move with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को मानते रहिए और पवित्र आत्मा के साथ चलते रहिए। God will do great things in your life. परमेश्वर आपका जीवन में बहुत बड़े कार्य करेंगे। May God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का सामर्थ का वचन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। हम एक सॉन्ग को गाने के समय आप परमेश्वर के लिए दान दे सकते हैं। दिस द ऑफरिंग टाइम। कितने लोग जूम में आप कनेक्टेड है? अभी आपको एक डोनेशन डिटेल्स आ जाएगा, उसमें पेटीएम डिटेल से, बैंक डिटेल से, यूपीआई आईडी के द्वारा भी यीशु बुलाता सेवकाई के लिए आप दान दे सकते हैं। प्रार्थना के साथ परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। उसमें पेटीएम डिटेल से, उसमें भी आप स्कैन कर क्यूआर कोड के साथ आप परमेश्वर के लिए दान दे सकते हैं। बहुत आनंद के साथ, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के लिए बीच बोझिए। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु है, मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु है, आनंद देने वाले प्रभु यीशु है, चंगाई देने वाले प्रभु यीशु है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने
वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से बढ़कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से बढ़कर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सब लोग खड़े हो जाए। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से बढ़कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से बढ़कर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से बढ़कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से बढ़कर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद देता है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे दान के लिए ब्रदर सोनू के साथ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमें छुआ। परमेश्वर पिता प्रभु जी खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद प्रभु जितने भी परमेश्वर आपके लोगों ने प्रभु अपने हाथ बढ़ा के दान को दिया है परमेश्वर पिता प्रभु हर एक को परमेश्वर पिता 100 गुना 1000 गुना आप आशीष करिए परमेश्वर 1000 गुना आशीष करिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु वो जिस भी काम में हाथ लगाते हैं परमेश्वर उसमें वो बरकत को देखें परमेश्वर पिता प्रभु जी। उसमें वो बढ़ोतरी को देखें परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु अपनी जिंदगी में परमेश्वर ऊंचे स्थान पे आप उनको बिठा दीजिए परमेश्वर पिता प्रभु जी क्योंकि आप हमारा सहारा है परमेश्वर। प्रभु आप हमारा सहारा है परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु उनके हाथों के कामों को आशीष कर परमेश्वर उनके घर में उनके आटे में तेल में हर एक चीजों में परमेश्वर पिता आशीष कर दीजिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। उनके बच्चों को परमेश्वर उनके पूरे परिवार को परमेश्वर आप आशीष करिए खुदावन आशीष करिए परमेश्वर। अपनी जिंदगी में कोई भी कमी घटी को वो ना देखें परमेश्वर पिता। आपका स्वर्ग के भंडारों से परमेश्वर आप उनको तृप्त कर दीजिए परमेश्वर तृप्त कर दीजिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु होने दीजिए परमेश्वर आत्मिक वरदानों से भी तृप्त करिए परमेश्वर आत्मिक वरदानों से भी तृप्त करिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। आत्मिक वरदानों से तृप्त कर दीजिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसा करने वाले परमेश्वर हैं। अपनी शांति प्रभु अपने लोगों के ऊपर आप बना के रखिए परमेश्वर बना के रखिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसा करने वाले परमेश्वर हैं। हर एक को परमेश्वर प्रभु जो परमेश्वर पिता मीटिंग में जुड़े हुए हैं प्रभु आपके हाथों
हाथों में हम सौंप देते हैं परमेश्वर। हर एक के घर में उद्धार आए परमेश्वर, हर एक के घर में चंगाई आए परमेश्वर पिता, हर एक के घर में शांति आए परमेश्वर पिता प्रभु जी। अगर वो किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं पिता, आप समाधान करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। अगर कोई बीमार है परमेश्वर, तो आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आपके वायदों के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके वचनों के लिए। अपने वचनों से अपने लोगों को परमेश्वर आप शांति दीजिए परमेश्वर, तृप्त करिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसा करने वाले परमेश्वर हैं। हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन, और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कितने लोग जूम लिंक के द्वारा कनेक्टेड है, सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।